Hi everyone, welcome to Rodha. In today's video, we'll be discussing few questions of algebra. Let's start with this question here. It says along a road lie an odd number of stones placed in intervals of 10 meter. All right, so there's a road here, okay, and there are few odd number of stones that are lying here on the road, okay, at an interval of 10 meters. So the stones have a gap of 10 meters. All right, so we can say that the gap is of 10 meters between any two stones. So any two stones, if you look at them, they have a gap of exactly 10 meter, right? And so on and so forth. Okay, so we have gap of 10 meter between any two successive stones, and these are odd number of stones, right? Sorry, my bad. So these all have a gap of 10. All right, let's see it further. These stones have to be assembled around the middle stone. All right, so there's some stone in middle here. Let's say this is the stone that is in middle. All right, a man carried out the job starting with the stones in the middle, carrying the stones in the succession, thereby covering the distance of 4.8 kilometers. So what is a man doing here? ठीक है, so man यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये मान लो ये पहला stone है which is at a gap of 10 meter from here. This is the second stone at a gap of 10 meter, and this is the third stone at a gap of 10 meter, right? And let's say there are exactly n stones to the right of this middle stone. Okay, there are exactly, let's say, n stones to the right of this middle stone, and there are exactly n stones to the left of this middle stone, the stone in green. All right, because this is a stone in middle, right? So what is a man doing, right? For the first stone, what he'll do, he'll go a distance of 10 and come back 10, right? And bring this stone to the middle, right? Because the job is to assemble around the middle stone all the stones, and he goes in a successive manner starting from the middle stone and one stone at a time, right? Then after that, can I say he'll go to the second stone and bring that back here. So his onward journey is 20. So this is distance is 2 into 20, right? This one is 2 into 10. He goes 10 forward and comes 10 backward, right? First he'll go 10 forward to this stone, pick this stone up and bring it back. So he'll cover distance of 10 backward. So 2 into 10, right? Again he goes 10 forward and again brings that stone back. So 10 and 2 into not 10, 20 forward, right? 20 forward and 20 backwards. तो कितना हो गया, 2 into 20 हो गया. सिमिलरली अगर वो थर्ड स्टोन उठाने जाता है, ठीक है, तो वो 30 फॉरवर्ड जाएगा, पिकअप द स्टोन एंड ब्रिंग इट बैक, 30 बैकवर्ड आएगा, तो कितना करेगा, 2 into 30, राइट? सो कैन आई से द टोटल डिस्टेंस, नाउ दिस इज इन मीटर्स, है ना? तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं मिडिल स्टोन के राइट की बात करूँ तो उसने कितना कवर किया होगा? कैन से इट विल बी नथिंग बट 2 into 10, और आई कैन से 2 into, राइट? आई टेक आउट 2 कॉमन, सो आई गेट व्हाट, 10 प्लस 20 प्लस 30 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू 10n, क्योंकि अगर nth स्टोन है ना, अगर मान लो मैं फोर्थ स्टोन की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं कितना कवर करता हूँ डिस्टेंस? इफ दिस इज माई फोर्थ स्टोन, राइट? So how much am I covering? I'm covering 40 one way, right? So which is 10 into 4. I'm coming back 40. So I've already taken 2 common. So for nth stone, it should be 10 into n, है ना? सब में से ये 2 और 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो क्या बचेगा? 10 प्लस 20 प्लस 30 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू 10n, ठीक है? तो अगर यहाँ पे मैं 10 भी कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू n, है ना? और ये हो गया मिडिल स्टोन के राइट वाला डिस्टेंस, राइट? अब मिडिल स्टोन के लेफ्ट साइड में भी इतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि मान लो कि पहला स्टोन यहाँ पे है, ठीक है, तो ये गैप 10 का है, तो 10 जाना और 10 वापस आना, ठीक है? दूसरा स्टोन अगर यहाँ पे, तो वापस से 20 जाना और 20 वापस आना, राइट? सो सेम डिस्टेंस विल बी कवर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो. तो कहने से अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे को, तो ये टोटल डिस्टेंस होना चाहिए. अब टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है? 4.8 किलोमीटर्स, राइट? तो 4.8 किलोमीटर्स है किया है, बट यहाँ पे मैंने डिस्टेंस मीटर में कैलकुलेट किया बिकॉज दिस इज ऑल 10 मीटर, राइट? तो कहने से दिस शुड बी इक्वल टू नथिंग बट 4800 मीटर्स, है ना? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, राइट? सो 4.8 किलोमीटर इज सेम एज सेइंग 4.8 into 1000 meters विच इज 4800. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 and 0 इज कैंसल्ड, राइट? एंड 2 into 240 is 280, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? एक ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस 2 इज ऑल्सो गॉन, सो 120 बचा, ठीक है? सो वी आर लेफ्ट विद द 120, राइट? अच्छा, तो ये 1 to n क्या होता है? 1 to n इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर विच इज गिवन बाय n into n plus 1/2, राइट? विच इज इक्वल टू 120. तो अगर ये 120 है, तो कहने से n into n plus 1 should be equal to 240,
ठीक है। अब अगर n इंटू एन प्लस वन 240, तो n की क्या वैल्यू मैं पुट करूँ कि यहाँ पे 240 आ जाए। तो यार अंडरस्टैंड, एक चीज़ समझो यहाँ पे, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 9 इंटू 9 कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है ना। और 9 इंटू 10 होता है 90, जो कि 81 और 100 के बीच में लाई करता है। तो जो भी n की वैल्यू है ना, वो उसके पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर उसके बाद वाले परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आनी चाहिए, है ना। तो जैसे यहाँ पे 240 है, तो 240 किसके बीच में लाई करता है, तो 240 225 से बड़ा होता है। एंड 225 क्या होता है, 15 इंटू 15। तो एक बार मैं 15 इंटू 16 ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। लेट मी सी 15 इंटू 16 इज 240 और नॉट, ठीक है। तो 15 इंटू 16 कितना होता है, 16 5 इज 80, 8 कैरी ओवर, राइट। 16 प्लस 8 इज 24, so this is definitely 240, isn't it? So can I say the value of n should be nothing but equal to 15? At n is equal to 15, this equation is satisfied, right? So the question was asking how many stones are there. So if there are n stones to the right of the middle stone, so 15 stones, right? N stones to the left of the middle stone, so again 15 stone, and one stone is in the middle here. So total stones are how many? I can say 15 plus 15 30 plus 1 31. So total stone कितने हो गए मेरे पास, exactly 31 stones, ठीक है। So this was a good question, थोड़ा सोचने वाला था ये, right? चलो let's move ahead to the next one. अब यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, लेट एस इज इक्वल टू 2x प्लस 5x² प्लस 9x³ प्लस 14x² अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। फाइंड द सम एस, ऑलराइट। अब यार एक चीज़ समझो यहाँ पे कि ये सीरीज थोड़ी ना अजीब सी लग रही है अभी देखने में, राइट। क्यों अजीब सी लग रही है, लेट्स अंडरस्टैंड। क्योंकि ना मुझे यहाँ पे ए पी भी दिख रहा है और मुझे यहाँ पे जी पी भी दिख रहा है, ठीक है। आई कैन सी अ ए पी एज वेल एज अ जी पी। वॉट इज़ अ जी पी, जहाँ पे कॉमन रेशियो सेम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सीरीज कहता हूँ कि 2 4 8 16, तो ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं, हम जीपी कहते हैं, ठीक है। सच अ सीरीज इज कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2 इज 4, है ना। 4 इंटू 2 इज 8, तो 4/2 बेसिकली 2 आएगा, 8/4 2 आएगा, 16/8 भी 2 आएगा, राइट। तो जब भी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होता है तो ऐसी सीरीज जीपी में होती है, राइट। अब देखो यहाँ पे x² अपॉन x कितना होता है, x होता है ना। x³ अपॉन x² कितना होता है, वापस x होता है। x4/x³ कितना होता है, x होता है, राइट। तो ये जो टर्म्स हैं, ये x² x3 x4, ये सारे जीपी में है, ठीक है। और अगर मैं कोफिशिएंट्स की बात करूं तो 5 और 2 में 3 का डिफरेंस होता है ना। 9 और 5 में 4 का डिफरेंस होता है, राइट। 14 और 9 में 5 का डिफरेंस होता है, राइट। और 20 और 14 में भी 6 का डिफरेंस होता है। तो ये एक मेरी इंक्रीजिंग एपी है, ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक तो ये एजीपी की सीरीज हो गई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एजीपी, राइट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा गाइस, राइट, तो अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म्स है ना मेरे, क्या है, 2 5 9 14, है ना, 20। तो ये किसी स्टेप के बाद इनका डिफरेंस सेम होगा। जैसे यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे मेरा डिफरेंस 6 आ गया। 4 - 3 1 हो गया, 5 - 4 1 हो गया, 6 - 5 भी 1 हो गया। तो कहने से 2 स्टेप के बाद मेरा डिफरेंस सेम हो रहा है। तो जब भी ऐसी सीरीज आती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जितने स्टेप के बाद डिफरेंस सेम होता है उतनी बार कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। जो जीपी चल रही होती है इसमें, इसका कॉमन रेशियो कितना है गाइस, एक्स है ना। x² बाय x इज x, है ना। x³ बाय x² भी x होता है। x⁴/x³ इज ऑल्सो x, राइट। सो आई मल्टीप्लाई दिस सीरीज बाय x, ठीक है। तो ये अगर s है, इसका सम s है, तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन रेशियो s x से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट, तो ये 2x जो है मेरा वो 2x² बन जाएगा, ठीक है। 5x² मेरा 5x³ बन जाएगा, राइट। 9x³ मेरा 9x⁴ बन जाएगा। और 14x⁴ मेरा 14x⁵ बन जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू इन्फिनिटी। नाउ इफ आई टेक अ डिफरेंस ऑफ दीज टू इक्वेशंस, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, लेट्स सी। सो इफ आई एम टेकिंग अ डिफरेंस आई गेट नथिंग बट s माइनस एस एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ प्लस 5x⁴ प्लस 6x⁵ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू इन्फिनिटी। अभी मैंने बताया कि अगर दो स्टेप के बाद डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है, अगर दो स्टेप के बाद डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये जो कॉमन रेशियो मैंने x से एक बार मल्टीप्लाई किया, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इफ आई मल्टीप्लाई इट अगेन विद द x, तो ये हो गया मेरा, आई कैन से x इंटू एस इंटू 1 - x, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे s कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 - x बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा,
2x into x is 2x square, 3x square into x is 3x cube, 4x cube into x is 4x to the power 4, 5x to the power 4 into x is 5x to the पावर 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू इन्फिनिटी। अब वापस से अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, ठीक है, तो x इंटू वन माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, राइट। अगर मैं s, देखो ये जो पार्ट है मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं s इंटू वन माइनस एक्स इंटू एस इंटू वन माइनस एक्स करता हूँ, है ना, तो यहाँ पे s इंटू वन माइनस एक्स कॉमन आएगा मेरा, राइट। और मेरे पास बचेगा क्या, एग्जैक्टली वन माइनस एक्स बचेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये आ जाएगा s इंटू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, है ना, प्लस एक्स टू द पावर 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये जो सीरीज आई है मेरी, ठीक है, अगर मैं इस 2x को x प्लस एक्स के फॉर्म में लिख लूँ, है ना, अगर मैं इस 2x को x प्लस एक्स के फॉर्म में लिख लेता हूँ ब्रेक करके, तो जो मेरा टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, लेट्स सी, एक्स टू द पावर 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर मैं इसको न्यू पेज पे लेता हूँ तो कैन आई से आई एम गेटिंग बेसिकली, लेट मी टेक अ फ्रेश पेज। तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, एस इंटू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और इस साइड क्या मिल रहा है मुझे, एक्स प्लस, आई एम गेटिंग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी। सो नाउ कैन आई सी, ये जो सीरीज है ये मेरी जीपी की सीरीज है, राइट। दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद अ कॉमन रेशियो ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्या होता है, एक्स होता है, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर भी क्या होता है, एक्स होता है। एंड व्हाट इज द सम ऑफ अ जीपी विद अ कॉमन रेशियो एक्स जो कि इनफाइनाइट तक है, कैन आई से इट विल बी नथिंग बट एक्स प्लस x upon 1 minus r, that is 1 minus x, right, and this is nothing but s into 1 minus x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई गेट नथिंग बट x into 1 minus x plus x upon 1 minus x and this is s into 1 minus x square, right। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो आई गेट नथिंग बट x and plus x will give me a 2x minus x square upon 1 minus x square into 1 minus x. If I bring this 1 minus x square in the denominator, so I'll get nothing but s is equal to 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल क्यूब, राइट। और अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x कॉमन ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स होल क्यूब एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ए जी पी मिलेगा आपको, ठीक है, whenever you're finding a AGP in CAT in any exam, right, your first step is to be multiply with the common ratio। अगर एक स्टेप में ही AP बन रहा है, ठीक है, अगर ये ऐसे दो स्टेप के बाद सेम नहीं हो रहा, पहले स्टेप में सेम हो रहा है, तो फिर एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। अगर दो स्टेप के बाद हो रहा है तो मैंने कॉमन रेशियो को दो बार मल्टीप्लाई किया, एक बार यहाँ पे किया और फिर एक बार इसमें यहाँ पे किया, और डिफरेंस लेते जाओ, ठीक है। एंड अल्टीमेटली यूल एंड विद अ पार्ट ऑफ जीपी और एक टर्म एक्स्ट्रा बच जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे ये एक्स बच गया था, ये पूरा मेरा जीपी हो गया था, ठीक है। चलो लेट्स मूव हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हियर। Now it says in a certain examination paper there are n questions. For j is equal to 1 to n, there are 2 to the power n minus j students who answered j or more questions wrongly. ठीक है. If the total number of wrong answers is 4095, then find the value of n. Alright. तो अगर, ठीक है, अगर मेरी j की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो if j is 1, so can I say I'm trying to say कि people who have answered one or more incorrect, ठीक है, वन और मोर इनकरेक्ट, तो वो लोग कितने हो जाएंगे, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ जे एज वन, सो आई गेट नथिंग बट टू टू द पावर कैसे एन माइनस वन, ठीक है। इफ आई टेक जे इक्वल्स टू, दैट मीन्स पीपल हु हैव आंसर्ड टू और मोर इनकरेक्ट, तो कैन आई से आई गेट नथिंग बट टू टू द पावर एन माइनस टू, है ना। इफ आई पुट जे एज थ्री, दैट इज थ्री or more incorrect, so I'll get nothing but 2 to the power n minus 3 and so on and so forth. If I get j is equal to n, so basically I'm saying n or more incorrect, which is 2 to the power n minus n, right, 2 to the power n minus n, which is same as saying 2 to the power 0, okay, because j is n minus j, no, this value is what, number of questions incorrect is 2 to the power n minus j, so whatever is the value of j, I'll be putting that value here and I'll be getting these equations here, right। now understand, समझो यहाँ पे कि यार जो
वन और मोर इनकरेक्ट है, ठीक है, तो इट कैन बी एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू इनकरेक्ट प्लस एग्जैक्टली थ्री इनकरेक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और जो टू और मोर इनकरेक्ट है वो कैन आई से इज नथिंग बट एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री प्लस एग्जैक्टली फोर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि किसी का वन और मोर इनकरेक्ट है और किसी का टू और मोर इनकरेक्ट है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो कहने से ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये आगे वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, वही मिलेगा कि जिनका एग्जैक्टली वन इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली वन इनकरेक्ट वाले लोग कितने हो जाएंगे, इफ आई वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु हैव डन एग्जैक्टली वन इनकरेक्ट, सो आई शुड डू वन और मोर माइनस टू और मोर। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, टू टू द पावर एन माइनस वन माइनस टू टू द पावर एन माइनस टू, ठीक है। एग्जैक्टली टू इनकरेक्ट कितने लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज 4095, तो मुझे तो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर चाहिए, तो एग्जैक्टली टू इनकरेक्ट कितने लोगों ने किया होगा, दैट विल बी नथिंग बट कैन आई से टू टू द पावर एन माइनस टू माइनस दिस, राइट, सो टू टू द पावर एन माइनस टू माइनस टू टू द पावर एन माइनस थ्री। बट ये नंबर ऑफ लोग हो गए, ठीक है। अब इन्होंने इनकरेक्ट कितने किए, इन्होंने इनकरेक्ट तो दो क्वेश्चन किए ना, ठीक है, टू टू द पावर एन माइनस टू एंड एन माइनस थ्री हो गया ये, है ना। अब ये इतने लोग हुए जिन्होंने दो क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, तो क्योंकि इन्होंने दो क्वेश्चन इनकरेक्ट किया और मुझे तो यहाँ पे टोटल रॉन्ग आंसर्स, टोटल रॉन्ग क्वेश्चंस का सम चाहिए 4095, तो मुझे इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे टोटल रॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि कितने लोगों ने गलत किया, मुझे ये चाहिए कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एग्जैक्टली थ्री चाहता हूँ कि कितने लोगों ने एग्जैक्टली थ्री क्वेश्चन गलत किए, तो कैन आई से आई डू नथिंग बट टू टू द पावर एन माइनस थ्री माइनस टू टू द पावर एन माइनस फोर, ठीक है, एंड इंटू थ्री, वाई इंटू थ्री, बिकॉज इतने लोगों ने तीन क्वेश्चन गलत किए, तो ये नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है। दिस ब्रैकेट टेल्स कि इतने लोग हैं जिन्होंने तीन क्वेश्चन गलत किए, लेकिन क्वेश्चन कितने गलत है, मल्टीप्लाई बाय थ्री। अगर मैं कहता हूँ 10 लोग हैं जिन्होंने तीन क्वेश्चन गलत किए, तो कितने क्वेश्चन गलत हुए, 10 इंटू थ्री, दैट इज 30 क्वेश्चन, है ना, टोटलिटी में तो इतने क्वेश्चन गलत है, तो बाय सेम लॉजिक आई एम मल्टीप्लाइंग विद दिस, ठीक है। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, एग्जैक्टली एन क्वेश्चन कितने लोगों ने गलत किए होंगे, एग्जैक्टली एन क्वेश्चंस, कैन आई से ओनली टू टू द पावर जीरो पीपल, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, ठीक है, इफ आई ट्राई टू ऐड दिस, तो तुम देखो यहाँ पे टू टू द पावर एन, टू इंटू टू टू द पावर एन माइनस टू आएगा, और यहाँ पे टू टू द पावर एन माइनस टू है बस, तो ये टू, टू इंटू टू टू द पावर एन माइनस टू माइनस टू इंटू एन, टू टू द पावर एन माइनस टू कितना हो जाएगा, कैन आई से एग्जैक्टली टू टू द पावर एन माइनस टू, ठीक है। अगर मैं इन सबको ऐड करूँ, इफ आई ऐड ऑल दिस, सो व्हाट विल आई गेट, चलो लेट मी टेक अ फ्रेश पेज हियर, ठीक है। इफ आई ऐड ऑल दीज वैल्यूज, राइट, that is exactly one incorrect plus exactly two incorrect and so on and so forth up to exactly n incorrect, right। तो n incorrect क्योंकि ये टोटल मुझे कितना दिया हुआ है 4095, ठीक है। सो इफ आई स्टार्ट एडिंग एवरीथिंग, तो व्हाट विल आई गेट टू टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे देखो टू टू द पावर n माइनस टू माइनस का, और यहाँ पे टू इंटू टू टू द पावर n माइनस टू प्लस का, सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, टू टू द पावर n minus 2 into 2, and then from here I am getting a minus of 2 to the power n minus 2. So can I say basically this is gonna result in 2 to the power n minus 2 itself, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे 3 इंटू टू टू द पावर n माइनस थ्री मिला, और यहाँ पे 2 इंटू टू टू द पावर n माइनस थ्री मिला, जो कि नेगेटिव का है, राइट, दिस इज ऑफ नेगेटिव, isn't it। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, एग्जैक्टली टू टू द पावर n माइनस थ्री। सो बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग इज टू टू द पावर n माइनस वन प्लस टू टू द पावर n माइनस टू plus 2 to the power n minus 3 and so on and so forth up to exactly n incorrect, which is 2 to the power 0, ठीक है। This is 2 to the power 0 and this is equal to 4095, right। अच्छा, अब ये मेरी जीपी बन गई ना, ठीक है। सो ये जीपी बन गई, टू टू द पावर जीरो आएगा, ठीक है, अप टू 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 द पावर एन माइनस वन, तो ये जीपी बन गई विद अ कॉमन रेशियो ऑफ, तो इसका कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, इट्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, लाइक से टू टू द पावर n minus 1 upon 2 to the power n minus 2, ठीक है। तो we know that a to the power m upon a to the power n, ठीक है, इक्वल्स a to the power m minus n। तो अगर मैं ये यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 to the power n minus 1 minus of n minus 2 which will become minus n plus 2। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, कॉमन रेशियो ऑफ 2 to the power 1 which is equal to 2। सो दिस इज अ जीपी with a common ratio of 2, तो इसका सम क्या हो जाएगा, सो सम ऑफ अ जीपी, finite GP is given by A into R to the power n minus वन अपॉन R minus वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो
आई कैन से r माइनस वन, राइट। अब यहाँ पे देखो कितने, a इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो मेरा 2 टू द पावर 0 विच इज नथिंग बट 1 इटसेल्फ, राइट। r टू द पावर n, कॉमन रेशियो मेरा 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। अब 0 से लेके n माइनस वन तक कितने टर्म्स हो गए? अगर 1 से लेके n माइनस वन तक होते, ठीक है, तो कितने टर्म्स होते हैं? n माइनस वन होते, बट क्योंकि काउंटिंग मेरी 0 से स्टार्ट हो रही है तो कहने से द नंबर ऑफ टर्म्स इज एग्जैक्टली n माइनस वन अपॉन r is 2 minus 1, ठीक है, and this value is has been given to me as nothing but 4095, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? आई गेट नथिंग बट 2 टू द पावर n minus 1 is equal to 4095, so I can say 2 to the power n should be equal to 4096. So if 2 to the power n is 4096, so we know that 2 to the power 12 is equal to 4096, right? So if I compare, if the base is same, I can compare the power. So the value of n should be equal to nothing but 12, right? So that should be my required answer. So these are like all CAT level questions, okay? और ये हमें एक आइडिया देते हैं कि CAT में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन फाइंड इन CAT, जो बहुत इजी भी नहीं होंगे, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। CAT इज अ एग्जाम जो आपको एक मॉडरेट लेवल पे टेस्ट करेगा, ठीक है। इफ सी, अगर CAT में अपने पास 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक्सेप्ट फॉर 2 और 3 क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो दीज आर ऑल मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस इज अ वेरी रेयर अपीयरेंस, लाइक ये वाला जो क्वेश्चन था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, राइट। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई पुट दिस इन द कैटेगरी ऑफ डिफिकल्ट, क्योंकि सबको ये चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। नॉट एवरीबडी नोज हाउ टू सॉल्व अ एजीपी, ठीक है। कुछ लोग तो इसका समझ नहीं पाते कि इसको अप्रोच कैसे करना है, राइट। तो दैट इज द एडवांटेज कि अगर अगर हमने सारी वेराइटीज कवर कर रखी हैं, अगर मुझे सारे मेथड आते हैं टू अप्रोच ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट एग्जिस्ट इन अलजेब्रा, इन अरिथमेटिक, इन ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम, नो मैटर कोई भी सेक्शन है, अगर मैंने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं और मैंने उसके प्रैक्टिस कर रखी है, तो आई एम डेफिनेटली 110% श्योर कि मैं जाके सारे क्वेश्चन टारगेट कर सकता हूँ। कितने बनते हैं कितने नहीं बनते हैं वो इस पे डिपेंड करता है कि उस दिन मेरा दिमाग कैसा चल रहा है, राइट। वेदर आई एम इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड और नॉट, क्या मैं सही डायरेक्शन में कर पा रहा हूँ चीज़, क्या मेरी चॉइस ऑफ क्वेश्चन सही है, वो सब चीज़ें उस दिन पे डिपेंड करती हैं। और इस पे कैसे वर्क करना है, इस पे मॉक से वर्क करना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लिखोगे, आप बहुत सारे टाइम कंस्ट्रेंट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो ये ऑटोमेटिक स्किल एक डेवलप होती है, वेर यू लर्न टू पिक क्वेश्चंस, पिक द राइट क्वेश्चंस एंड डू देम इन द राइट वे एंड इन द राइट टाइम, ठीक है। सो ये एक ना कंबाइंड इफेक्ट होने वाला है। इट्स नॉट कि अगर सिर्फ अच्छे क्वेश्चन ला ली तो मॉक स्कोर अच्छा आ जाएगा कैट में, ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छे क्वेश्चन भी करने हैं, आपको कंसेप्ट भी डेप्थ में पढ़ने हैं, राइट, एंड आपको साथ साथ मॉक्स भी लिखने हैं। सो तीनों चीज़ें अगर आप करोगे तो इट विल गिव यू अ वन गुड एंड रिजल्ट विच इज अ good CAT score that can help you get into a top P score, right? So we'll keep it till here, ठीक है। If you have any doubts in this particular set of 3 questions, please feel free to comment below. Thank you everyone.